Hello students, we will continue our A House is Not a Home. आज हम अपना A House is Not a Home chapter ही continue रखेंगे. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. Now the author is saying that his mother came out from the home and she had a small metal box full of important documents. अब author क्या कहता है कि जब हमारे घर में आग लगी थी तो मेरी माँ अंदर गई और वापस आई. उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. उन्होंने उस जो केस था उसको लॉन में डाला और फिर क्रेज स्टेट में यानी बहुत क्रेजी सी होकर रेन बैक इनटू द हाउस वापस घर में गई दौड़ी. I knew what she was after. मैं जानता था कि वो क्या लेने गई है. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. He is telling about the death of his father. वो बता रहा है कि उसके पिताजी की मृत्यु उस समय हो गई थी when he was young, जबकि वो young था. And he know that his mother will not let the pictures and the letters of his father go in flames. कि उसकी माँ उसके फादर के लेटर्स को पिक्चर्स को कभी भी आग में जलने नहीं देगी, तो वो उन्हीं को लेने गई है. They were the only things that she had to remember him by. They were the only things of my father from which she can remember my father. यही वो चीजें थी जिनके द्वारा वो मेरे पिता को याद रख सकती थी. Still I screamed at her, Mom, no. लेकिन मैं बहुत डर गया था कि मेरी माँ वापिस उस आग में जा रही है, तो मैं पीछे से चिल्लाया, नहीं माँ, वहाँ मत जाओ. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं भी उनके पीछे पीछे बिल्कुल जाने वाला था कि I felt that somebody is holding me. मैंने देखा कि पीछे से किसी ने मुझे पकड़ रखा है. It was a fireman. वो कौन था? Fireman था. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने यह भी नहीं देखा था कि पूरी की पूरी स्ट्रीट में गली में फायर ट्रक लगे हुए हैं. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother is in there." मैं उनसे अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था. Yelling means requesting. रिक्वेस्ट कर रहा था अब ये कहने की कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ अंदर है. तो yelling means request. YELLING. Yelling means request. Requesting. You don't understand. My mother is in there. देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी माँ अंदर है. He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा और दूसरे firefighters घर में अंदर चले गए. He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I had run. He was right. वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं चला जाऊंगा और मैं अपनी माँ के पास पहुंच जाऊंगा. It is all right. They will get her. He said. उन्होंने मुझे समझाते हुए जिसने मुझे पकड़ा हुआ था कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, हम तुम्हारी माँ को वापस ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मुझे ब्लैंकेट उड़ाया और मुझे कार में बैठा दिया. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और फिर देखा कि थोड़ी सी देर बाद ही एक फायरमैन मेरी माँ को लिए हुए अंदर से बाहर आया. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उसने उसे जल्दी से ट्रक में बैठाया और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. I ran over and hugged her. मैं उनके पास गया और उन्हें हग किया. Because she was his mother, and all those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. और पूरे टाइम तक मैं उनसे आर्ग्यू करता रहा. कैसे आर्ग्यू की? वाई डिड यू गो देयर? तुम वहाँ क्यों गई? तुम्हें कुछ हो जाता. और फिर मैं उस विचार से भी हेट करने लगा जिसमें मैं ये सोच रहा था कि क्या होता अगर मैं अपनी माँ को लॉस कर देता, खो देता. She is going to be okay, said the fireman. जब मैं बहुत रो रहा था तो फायरमैन ने कहा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. She just inhaled a little smoke. उन्होंने थोड़ा सा स्मोक उनके अंदर चला गया है. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there. और फिर वो आग का सामना करने के लिए वापस दौड़ा और मैं अपनी माँ के साथ ही बैठा रहा.
I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मैं देख रहा था कि मेरा पूरा घर आग में जल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता. 5 hours later, the fire was finally out. The fire was finally out after 5 hours. 5 घंटों के बाद आग अंत में बुझ गई. Our house was almost completely burned down. हमारा पूरा का पूरा घर completely जल गया. But then it struck me. तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया. I had not seen my cat. अरे मुझे अपनी कैट तो दिखाई ही नहीं दे रही है. Where was my cat? मेरी कैट कहाँ थी? Much to my horror. इससे मेरा हॉरर यानी डर और भी अधिक भर गया. I realized that she was nowhere to be found. और मैंने महसूस किया कि कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो मुझे दिखाई दे रही है. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. और तुरंत ही मेरे दिमाग में वो सब घटनाएं आने लगी. मेरा नया स्कूल, आग, मेरी फायर और मेरी कैट. और फिर मैं आंसू से रोने लगा और चिल्लाने लगा. I was suffering loss big time. मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है. लंबे समय तक यह पूरा नहीं होगा. The fireman would not let us go back into the house that night. उस रात फायरमैन ने हमें घर में वापस नहीं जाने दिया. It was still too dangerous. हमारे लिए अंदर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस होता. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. Dead हो या alive हो, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था अपनी कैट के बिना रहने का. Regardless, I had to go. लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our back and a few of the fireman's blankets. हमारे पास जो हमने कपड़े पहने हुए थे उन्हें पहने हुए और फायरमैन के द्वारा दिए गए कुछ ब्लैंकेट के साथ हम कार में बैठे and made our way to my grandparents' house to spend the night. और that night we went to our grandparents to spend that night. और उस रात को बिताने के लिए कहाँ चले गए? हम अपने grandparents के घर चले गए. The next day, Monday, I went to school. The next day was Monday. Monday था और वो स्कूल गया. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग लगी तो मैं उस समय वह ड्रेस पहने हुए था जो कि मैं उस मॉर्निंग चर्च में पहनकर गया था, लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे. I had kicked them off when I was doing my homework. जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने उन्हें किक मारकर दूर भगा दिया था. They became yet another casualty to the fire. और वो भी फायर में जल गए. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. इसलिए मुझे अपनी आंटी से कुछ टेनिस शूज बोरो करने पड़े. Why couldn't I just stay home from school? और मैंने पूछा कि क्या मैं आज घर पर क्यों नहीं रह सकता? My mother wouldn't hear of it. लेकिन मेरी माँ ने यह नहीं सुना. But I was totally embarrassed by everything. मैं सारी चीज जो मेरे साथ घटित हुई थी उससे मैं बहुत शर्मिंदा था. मेरे पास स्कूल में जाने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं थी, मेरे शूज भी नहीं थे, तो मैं बहुत शर्मिंदा था. The clothes I was wearing looked tired. और जो मैंने क्लॉथ पहने हुए थे वो गंदे दिखाई दे रहे थे. I had no book, no homework. I have neither book nor homework and my backpack was gone. वो सब जल गया था. I had my life in that backpack. और उसने कहा कि मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ उस बैकपैक में थी. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a Greek all my life? अब वो जितना अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश करता उसी में घूमता चला जाता और वो सोचता कि शायद मुझे अपने पूरे जीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा. That is what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl and die. वो क्या कहता है कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ में बनना नहीं चाहता था कि अगर मुझे इसी तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ा, सर्वाइव करना पड़ा, तो वो सर्वाइव नहीं करना चाहता था. वो जीवित नहीं रहना चाहता था, मर जाना चाहता था. I walked around school like a zombie. मैं एक zombie के समान स्कूल में घूमा. Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen. सब कुछ मुझे अटपटा सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. जिसे मैं अपनी सिक्योरिटी समझता था, अपना समझता था, वो सब चले गए थे. जैसे कि उसका घर, उसकी कैट, उसके फ्रेंड्स, उसका पुराना स्कूल. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. आज स्कूल के बाद जब मैं अपने घर पर गया तो मैं ये देखकर सरप्राइज हो गया कि कितना डैमेज हुआ.
Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. केवल जो जलने से नहीं बचा था वो वाटर और केमिकल से जो कि फायर के द्वारा वहां पर लगे. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. सारी चीजें जल गई थी, केवल क्या बची थी? फोटो, एल्बम और डॉक्यूमेंट्स जो कि उसकी माँ किसी तरह से बचाकर ले आई थी. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एज फॉर हार्ट. लेकिन उसकी कैट खत्म चली गई थी और उसका जो हार्ट था उसके लिए एक्ट करता था, उसको बहुत ज्यादा पेन होता था. There was no time to grieve. He has no time to show his grief. अब उसके पास अपने दुख को शो करने का कोई टाइम नहीं था. My mother rushed me out of the house. मेरी माँ मुझे पकड़कर घर से बाहर ले आई. We would have a place to live and I would have to go buy some clothes for school. उन्होंने मुझसे कहा कि हम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे और मैं स्कूल में जाने के लिए कुछ ड्रेसेस खरीद लेंगे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards. हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, इसलिए हमें अपने ग्रैंडपेरेंट्स से पैसे लेने पड़े. कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था जिससे कि हम कैश से मनी विथड्रॉ करा सकें. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ क्या हुआ? स्मोक में जल गया. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the road. और जो पूरा डेब्रिस कचरा हमारे घर में इकट्ठा हो गया था, उस वीक वो खत्म कर दिया गया, उसे क्लियर कर दिया गया. Even though we had rented an apartment nearby. हमने nearby एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया. I would go over to watch them clear away debris. मैं वहां पर जैसे जैसे हमारे घर की सफाई होती जा रही थी, मैं उसको देखने के लिए वहां पर जाता था. Hoping that my cat was somewhere to be found. उसे उम्मीद थी कि कहीं पर भी उसको उसकी कैट मिल सकती है. Whether it is that she was gone. अब वो कहता है कि वो चली गई. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her, मैं उसको याद करता था और in the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me. वो क्या कहती थी? कह रहा है कि जब सुबह को मैं उसे डिस्टर्ब करता था, बिस्तर से बाहर निकालता था, तो वो मेरे ऊपर पंजा मारने लगती थी. क्लाइंब अप माई रोप. मेरी डेस्क पर चढ़ जाती थी. क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल asleep. मेरी पॉकेट में जाती थी और वहां पर क्या करती थी? सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली. यह हमेशा दिखाई देता है कि जो बैड न्यूज होती हैं वो बहुत तेजी से फैल जाती हैं. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे केस में भी ये कोई डिफर नहीं था. यानी मेरे घर की जलने की बात बहुत तेजी से सबने फैल गई. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई फ्लाइट. मेरे हाई स्कूल में एवरीवन, हर कोई, यहाँ तक के टीचर्स भी मेरी जो दुर्दशा थी उससे अवेयर थे. आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. और मुझे शर्म आ रही थी. ऐसे लग रहा था कि शायद इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. वो कहती है कि मैं अपना नया स्कूल में कैसे स्टार्ट करूंगा. The next day at school, people were acting even more strange than usual. अब अगले दिन जब वो स्कूल गया तो वहाँ के जो लोग हैं पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, एक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे. I was getting ready for gym class at my locker. वो कहता है कि मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर रूम में. People were miling around me. दूर दूर से लोग मेरे पास आए. Asked me to hurry up. और मुझे कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो. I thought it strange. मुझे ये strange लगा. But in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. लेकिन पिछले कुछ वीक से जैसा कि मेरे साथ घटित हो रहा था, अब मुझे कोई भी बात सरप्राइज नहीं करती थी. It almost seemed that they were trying to show me into the gym. ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मुझे जिम में भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं. Then I saw why. फिर मैंने देखा क्यों. There was a big table. क्या देखा उन्होंने? There was a big table set up with all kinds of stuff on it. There was a big table. वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल थी and all type of stuff was sitting on that table. काफी सारा उस पर सामान रखा हुआ था. Just for me. और वो सामान किसके लिए था? For me. मेरे लिए, मीन्स ऑथर के लिए. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, etc.
उन्होंने वो सब उसके लिए वहां पर कलेक्ट करके रखा हुआ था। इट वॉज लाइक क्रिसमस। उसे वो किसके समान लगा? क्रिसमस के समान लगा। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लोग पहले मेरे से बोलते तक नहीं थे, वो लोग मुझे अपने आप खुद इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन ऑफ देयर हाउस। मुझे उनके घर पर आने के तरह तरह के इन्विटेशन मिले। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी। उनकी इस तरह की भावना ने वास्तव में मुझे टच कर लिया, मुझे छू लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। उस समय मुझे बहुत रिलीफ मिला और पहली बार मैंने सोचा कि शायद सारी बातें धीरे धीरे ओके हो जाएंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट वे। इस तरह से मेरे मित्र बन गए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद मैं अपने घर को दोबारा से बनते हुए देख रहा था, but this time it was different. लेकिन इस समय अलग था। क्या था? I was not alone. मैं अकेला नहीं था। I was with two of my new friends from school. मैं अपने स्कूल के दो नए फ्रेंड्स के साथ था। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up all the wonderful people around me. और क्या हुआ कि उन्होंने मेरा ध्यान फायर की तरफ से हटाकर और वंडरफुल थिंग्स की तरफ लगाया, और उन्होंने ही मेरा पूरा का पूरा वंडरफुल लोगों का ध्यान मेरे वंडरफुल लोगों का, यानी अब उसका मन जो था अपनी जो घटनाएं थी उनसे हटकर अपनी सराउंडिंग्स में जाने लगा। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. मैं बैठा हुआ था, अपने घर को बनते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे जीवन में अब से पुराने जैसा होने वाला है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, जब मैं वहां पर एक ढेर पर बैठा हुआ था, अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, पीछे से मैंने देखा कि कोई मुझे कुछ कह रहा है। डज दिस बिलोंग टू यू? उनके हाथ में क्या था? दिस वॉज अ कैट। कैट थी और वो कह रही थी कि क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जब मैंने घूमकर देखा कि यह कौन है, क्या पूछ रही है मुझसे। I couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आईज पर विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat. एक महिला वहां पर खड़ी हुई थी जिसके पास क्या थी? मेरी कैट थी। I leaped up and grabbed her out of the woman's arms. एकदम से मैं उछला और उसे उस महिला के हाथों से छीन लिया। I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. And I held her close to me. मैंने उसे अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया and cried into beautiful orange fur. और बहुत तेजी से चिल्लाया उसके सुंदर ऑरेंज फर में। She purred happily. वो बहुत खुशी से गुर्राई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी। मेरे फ्रेंड्स भी चारों तरफ मेरे इकट्ठा हो गए, हग करने लगे। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। कैट को हग करने लगे और उछल कूद मचाने लगे। Apparently my cat had been so struck by the fire that she ran over a mile away. मेरी कैट ट्रैक में टाइटन फायर से इतनी ज्यादा जल गई थी, डर गई थी, भयभीत हो गई थी कि वो मीलों दूर चली गई। Her collar had our phone number on it. उसके कॉलर पर हमारा फोन नंबर था। But our phones had been destroyed and disconnected. लेकिन जो हमारे फोन थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि सब कुछ जल गया था। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. यह महिला उसे अपने घर ले गई और उन्होंने कठिन परिश्रम किया यह जानने के लिए कि यह कैट किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और किसी तरह से वो जान गई कि इस कैट को बहुत प्यार से पाला गया है और निश्चित रूप से जिनकी ये कैट है वो उसे मिस कर रहे होंगे, और जो कि सही था, मैं अपनी कैट को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. जब मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरी जो कैट थी मेरी गोद में थी, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to dismiss. लॉस और ट्रेजेडी की सारी भावनाएं ऐसी लग रही थी जैसे कि खत्म हो गई हो। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. मैं अपने जीवन में अपने नए जीवन के लिए, अपने नए फ्रेंड्स के लिए
काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर द्वारा दिखाई गई काइंडनेस के लिए और अपनी बिलव कैट के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड था। ऐसा मन था, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। अब क्या था कि मेरी कैट भी वापस आ गई थी एंड सो वॉज आई, और मैं भी वापस आ गया था। कहाँ आ गया था वापस? अपने घर में। अब वो कहाँ वापस आ गया था? अपने घर में वापस आ गया था, यानी अब वो हाउस से हटकर वापस कहाँ आ गया था? अपने